So hi Ritik, how are you? Yeah, I am fine, sir. Thanks for asking. And how are you, sir? I'm great too, bro. And thanks for Yeah. asking. And yeah, thanks for inviting me, sir. And it's No really a issues, bro. pleasure It's to be just here. Yeah. it's pleasure for me also. Connecting with my juniors. So Yeah, Ritik, sir. the whole purpose of this meeting is to you will share what you have done, and before initiating that, I would like to congratulate you for getting selected as deputy manager in ICICI Bank. So big congrats from my side. Yeah. Thank you so much, sir. Yeah. तो That's ऋतिक really बस great of यही you. करना है इस मीटिंग में हमें। मैं तुमसे पूछूंगा कुछ क्वेश्चन और तुम्हें उसको फिर अपने हिसाब से जैसे तुमने जो भी अपनी तैयारी की उसके बारे में हम ठीक है इसमें बात करेंगे, राइट? Yes. Okay, sir. सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। Okay. So yeah, my name is Ritik Gupta, and I am currently pursuing my BTech in civil engineering from NIT Patna, and I am based out of Kalahandi district in Odisha. And apart from this, I have been from the first year of my college only. I have been very interested in consulting and analytics in particular, and I have been very active in my college societies and club. Even I have been part of the training and placement cell, and also I have been part of an NGO known as Sankalp, which basically provides free education to underprivileged kids. And yeah, that's all about my college life. Right. So currently you are TPC also, that is training and Yeah, placement, right? coordinator. Yeah, sir. So okay, that's great. So Ritik, first of all, I want to know for what role has ICICI Bank came to NIT Patna. Role क्या था actual? Yeah. So the actual role is like deputy manager band two. So basically, they hire for two bands, like deputy manager band one and band two. So band two is like a higher grade, Yeah, or yeah, the CTC for band two that varies from around 4 to 11 lakhs, depending upon the college and the capability of the students. Also, yeah, that's all basically the role is about. okay. So anything else which you have listened from your seniors about this role, like Yeah. what? So yeah. So basically, in this role, they gives you various. They have various domain in which they may allot you. Like one of our senior is in the mortgage valuation group, in which what basically they do is they value the property, and in terms of their valuation, the bank provides the loan. Like Okay, for example, if there is a builder and he wants a loan of some building, using that collateral, they provide the loan. Yeah, that's right. what Okay, basically they do. okay, that's great. So Ritik, like when जब कोई भी कंपनी कॉलेज में आती है, so what they do is they send a JD that is called as job description, Yeah, right? job तो description. उसमें वो बेसिकली बताती है कि रोल क्या है, साथ में वो पूछती भी कि स्किल्स क्या क्या चाहिए हमें। तो ऐसा कुछ है था क्या आईसीआईसीआई बैंक की तरफ Okay. से? No, they haven't sent any particular, like they haven't mentioned a described JD. Basically, they just want you have a good communication skills and problem solving skills. That was their major requirement. ओके, सो ऐसा स्किल नहीं मेंशन किया था कि ये स्किल होनी चाहिए तभी बैठ पाएंगे आप, ऐसा कुछ नहीं था ना? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई भी टेक्निकल स्किल्स नहीं था उनके लिए नहीं थे, वेरिएबल में। राइट। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि क्या होता है कि हम जो बच्चे कोर में होते हैं उनके पास ऐसा कुछ होता नहीं है, मोस्ट ऑफ देम के पास कुछ चीजें होती यस। नहीं है। तो अगर पहले ही कंपनी लिख देती है तो हम वहीं पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, वहीं पे बाहर हो जाते हैं, राइट? हाँ, तो मुश्किलें होती सेल्फ है। कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम पे दिक्कत आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, एग्जैक्टली। Yeah. सो अब ऋतिक ये बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपनी मान लो किसी दिन आई होगी और किसी दिन फाइनल रिजल्ट दी होगी, तो इन दोनों डेज के बीच में गैप कितना था एग्जैक्टली? एग्जैक्टली तो मेरे को एक्चुअली ध्यान नहीं है, बट इट्स अराउंड ए वीक। वीक मतलब 6-7 दिन लग गए इट थे वाज पूरे अराउंड ए प्रोसेस को वीक। होने में। हाँ, 6-7 दिन लग गए थे पूरे प्रोसेस में। जैसे ये मैं इसलिए पूछता हूँ ना, सपोज कोई कंपनी आ रही है तो अगर वो सेम डे कर देगी तो आपको टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन का, बट अगर नहीं, तीन चार हाँ, सही पांच बात दिन है। रहता है तो उसमें बंदे प्रिपेयर कर लेंगे जो भी, ठीक है। चलो हाँ, ये तो है। एक हफ्ते दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, राइट? अब मुझे तुमसे जानना है कि यार जितने भी राउंड्स हुए, ठीक है, उसके बारे में तुम मतलब बारी बारी से राउंड, ओके। जैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ठीक है, उसको तुम एक्सप्लेन करो अपने एंड, ओके। राइट? सो व्हाट डू यू? So, yeah, sir. The first round was a OA round, basically online aptitude round, in which the questions were based out of Python, SQL, R, and C++. Also, they have asked about computer fundamentals topics like networking and DVMS. Basically, उन्होंने OA में हर कुछ पूछ लिया था, और questions जो थे 45 questions थे, और around 45 minutes का time भी था. So that was a very tough, the toughest round.
और Okay. अराउंड 250 बच्चे बैठे थे, जिसमें से उन्होंने 70 को शॉर्ट लिस्ट किया था, 81 को टू बी प्रिसाइज शॉर्ट लिस्ट कर रखा था 81, सेकंड राउंड के लिए। जो पहला राउंड था, मतलब उस पे अगर आप मान के चलिए, मैंने जहां तक मतलब कॉलेज में पता कर रखा है, जिनका भी 30+ क्वेश्चन सही है वो लोग को शॉर्ट लिस्ट किया उन्होंने लगभग, मतलब आउट ऑफ 45 you must have done like 30+ questions correct. And then there was a GD round, basically it GD round. So yeah, in each panel there were 14 students and there are two hiring managers. That was an offline round. ओके, तो ऑफलाइन राउंड। तो उसमें से ऑफलाइन राउंड, तो उसमें भी जैसे 4 या 6 पैनल्स थे, सो एक एक पैनल में से एवरेज आप मान के चलिए कि 4 से 5 लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया था। और जीडी का टॉपिक जो मेरे मेरे पैनल का था, सोशल मीडिया था, और कुछ पैनल्स में उन्होंने पूछ रखा था जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी बाय 2025। और जीडी काफी लीनियंट था। और जैसे जीडी में तो मैं तो ये कहूंगा, जो भी जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ट्राई करना है कि आपको इनिशिएट कीजिए एटलीस्ट, या फिर कंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। मैंने भी इनिशिएट किया था, सो जीडी के लिए तो वही है। और फिर उसके बाद जो तीसरा राउंड था, बेसिकली वो एचआर और टेक्निकल दोनों था, बट टेक्निकल में जैसे ही कोई स्किल मेंशन नहीं कर रखे थे, तो आपके रेज्यूमे बेस्ड पे वो लोग मतलब टेक्निकल का क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो मेरा जो तीसरा राउंड था, मेरा काफी लंबा चला था, अराउंड 45 मिनट्स चल गए थे मेरे। तो 45 उसमें मिनट्स। यू नो आई विल कम एवरेज टू सब। दैट, लाइक क्या क्या पूछा गया उस पर तुमसे अभी पूछूंगा। हाँ जैसे मेरे कुछ डाउट्स ये हैं कि पहले राउंड में केवल तुमसे सी प्लस प्लस और एसक्यूएल ये सब पूछा गया, या फिर कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी थे? बस कुछ भी मैथ्स क्वेश्चन नहीं था, बस एक क्वेश्चन था जो बार ग्राफ पे बेस्ड था, मतलब जो अपने जिसने भी कैट का कर रखा, डीआईएलआर टाइप का क्वेश्चन था, डाटा इंटरप्रेटेशन डीआई वाला ओके क्वेश्चन था ओके, पूरा। एक पैसेज था जिसमें 3 क्वेश्चन थे, बस वही 3 थे, और कुछ भी नहीं आया था मेरे पेपर में। तो राइट। सो जितने क्वेश्चन थे उसमें से 95% तुम्हारे टेक्निकल हो गए, सी प्लस प्लस, एसक्यूएल, 95%। पाइथन, राइट। और बचा एक क्वेश्चन जो तुम बोल रहे हो वो डीएलआर था, राइट? DILR. Or they matlab they have also focused in R also. They like I will say around 4 to 5 questions were from R language. और क्वेश्चन कैसे थे, लाइक क्या था? जैसे कोडिंग के क्वेश्चन थे या फिर कुछ एनालिटिक्स का था, मतलब क्या था ओवरऑल, था क्या एग्जैक्टली? बेसिकली कोडिंग क्वेश्चन से, जैसे कि उन्होंने आउटपुट पूछ रखा था, बेसिक्स प्रोग्राम्स थे जिनके आउटपुट पूछ रखे थे उन्होंने। और एनालिटिक्स के तो सच कोई क्वेश्चंस नहीं थे, बस एमएल के जो बेसिकली नहीं होते रिग्रेशन वगैरह के, या वो राइट। सबके बेसिक क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट राउंड जिसमें लगभग 250 स्टूडेंट्स बैठे थे, जिसमें से 81 का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। देन दे वेंट इनटू द जीडी राउंड। और जीडी के बाद कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे अप्रोक्स? जीडी के बाद हर पैनल से अराउंड दे हैव सिलेक्टेड अराउंड 40 to 45 स्टूडेंट्स। ठीक है, 40-45 स्टूडेंट्स में, ठीक है। फिर उनका लिया गया क्या, टेक्निकल हाँ प्लस एचआर, और हाँ, उसमें फिर पूछा एक ही गया राउंड था, एक ही राउंड, मतलब राइट? टेक्निकल एक ही राउंड था, हाँ। टेक्निकल प्लस एचआर, और उसमें उनसे पूछा गया जो भी उनके रेज्यूमे में था, ठीक है। अब बताओ तुमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, अगर तुम्हारे रेज्यूमे ओके, को देखें सो तो? हाँ, सो मेरा रेज्यूमे में सबसे पहले जैसे मैं गया, तो उन्होंने मेरा इंट्रो पूछा, तो मैंने इंट्रो जैसा भी सेम, मतलब लगभग सेम ही इंट्रो दिया था मैंने। क्या? फिर उसके बाद वो लोग मुझसे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछने लग गए। तो मेरे 3 प्रोजेक्ट्स थे, तो जिसका 3 प्रोजेक्ट्स थे मेरे, तो मैंने उसमें से 2 प्रोजेक्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स में मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि डिफिकल्टीज क्या क्या आई। तो राइट। मेरा जो रेज्यूमे था, मतलब एकदम एनालिटिक्स बेस्ड था, तो वही कि उन्होंने फिर मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, लाइक इज दैट लाइक गेटिंग ए डेटा सेट और यूजिंग डेटा माइनिंग। मतलब वही पूछा था कि पहला डेटा फेच करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, या फिर कोई डैशबोर्ड डिजाइन करो तो उसका डैशबोर्ड का डिजाइनिंग करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सो मैंने उसमें आंसर दे रखा था कि डेटा फेच करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब हम डेटा फेच करना जाते हैं तो हमारे पास लॉट ऑफ डेटा सोर्सेस रहते हैं, सो वी हैव टू फिगर इट आउट। सो या दैट्स व्हाट आई हैव आंसर्ड। एंड देन उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा था कि मेरे इंटरेस्ट के बारे में, कि बाकी सब ये सब छोड़ के बाकी नेक्स्ट तुम्हारे क्या इंटरेस्ट है, मतलब अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स एंड ऑल। और फिर हाँ, फिर उसके बाद ये जो था, हाँ, तो फिर उसके ऋतिक, बाद उन्होंने, या गो ऑन, या गो ऑन, गो। ओके सर। सो पहले तो वही इंट्रो और प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछे थे। फिर वही कि व्हाई डू यू वांट टू शिफ्ट टू बैंकिंग अपार्ट फ्रॉम यू आर ग्रेजुएटिंग इन सिविल। तो वही पूछा था कि इस पे अगर आ जाओ तो तुम्हारा मतलब दिक्कत कुछ ऐसा नहीं होगा। तो फिर मैंने उनको ये आंसर दिया था कि मेरा एनालिटिक्स और बैंकिंग में पहले से ही इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि वी ऑल हैव बीन इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट एंड ऑल। सो उस हिसाब से मैंने थोड़ा बताया था उनको। और फिर बस यही पूछा था उन्होंने, और तो राइट। बाकी ऐसे टेक्निकल स्किल्स कुछ पूछा नहीं था। जैसे मेरा क्वेश्चन ये, जैसे मान लो तुमने अपना जो है प्रोजेक्ट है वो एक्सप्लेन किया, ठीक है। तुमने हाँ शुरू किया, ठीक है।
तो उन्होंने प्रोजेक्ट के बीच में से कोई क्वेश्चन पूछा टेक्निकल, या फिर केवल वो पूछ रहे थे नहीं एचआर टाइप के क्वेश्चन, लाइक जैसे होता नहीं तुमने क्या नहीं डिफिकल्टीज टेक्निकल, फेस की, क्या क्या चीजें फेस की, यही सब हाँ पूछ रहा था, राइट? ठीक है, हाँ टेक्निकल क्वेश्चंस कुछ भी नहीं थे, बस एक पूछा था कि तुम ये प्रोजेक्ट्स को अगर आईसीआईसी में आए तो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, वैसा पूछ रखा था उन्होंने। अच्छा, कुछ इस तरीके से कि जो तुमने स्किल्स यूज किया इन प्रोजेक्ट में वो तुम कैसे हमारे बैंक में आके हाँ यूज करोगे, राइट? यूज कर सकते हैं, हाँ वैसा। तो कुछ इस तरीके से था। तो ओवरऑल फिर फाइनल कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था? फाइनल 28 स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं अपने कॉलेज से। 20 students from NIT Patna, right? And okay. हाँ So Ritik, what is your takeaway from the whole interview, and what you will suggest to the people, who will give interview in the future? Overall, just to conclude. I will say that they should have at least one or two good projects in analytics or any other field in which they are interested, and main improve your communication skills. Basically, what the company, what I feel that company look after is they want good communication skill and problem solving skill. If you can present your views and your answer in a good way, then that's the most important way. कोई ये नहीं देखेगा कि आपको कितना आता है, लेकिन वही है कि आप कितना प्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू का ड्यूरेशन भी काफी कम ही रहता है, तो उसमें Right. आपको अपना व्यूज रखना होता है। सो और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि एंड में आप क्वेश्चन जरूर पूछिए आचार से। सब बोलते हैं कि आचार से क्वेश्चन पूछना रहता है, सो मेरे इंटरव्यू में भी वही हुआ था कि एंड में उन्होंने पूछा था कि क्वेश्चन पूछने को, तो मैंने उनसे पूछा था कि व्हाट विल बी माय डे टू डे रोल एंड ऑल दैट। सो फिर उन्होंने आचार में मेरे से यही बोला था कि ये क्वेश्चन मैं चाह रही थी कि सब पूछे, लेकिन किसी ने पूछा नहीं, तुमने ही पूछा। तो वही मेरा इंटरव्यू का मतलब टर्निंग पॉइंट था, मैं तो कहूंगा। अच्छा, जो लास्ट में क्वेश्चन पूछना होता, राइट? हाँ तो तुमने ये वो पूछा जरूरी कि होता है। मेरा रोल क्या होगा, राइट? कई बार लोग फीडबैक पूछ लेते हैं कि सर फीडबैक कैसा था हाँ इंटरव्यू में, तो वो चीज सही है कि नहीं? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? वो भी सही है, वो फीडबैक भी पूछना सही है, लेकिन फीडबैक में मतलब वो तो पता चल ही जाता है। तो मैंने तो फीडबैक एंड में पूछा था, दो लोग थे एक्चुअली मेरे इंटरव्यू के पैनल में। ओके, सो एक एचआर थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया था बाद में, मतलब जब इंटरव्यू खत्म हुआ था तब। राइट। और मेरे हिसाब से पूछ लेना चाहिए कोई इसमें, अगर वो कहते हैं हाँ कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन याद नहीं आया तो यही पूछ लो सर फीडबैक अगर कहीं पे इम्प्रूव कर फीडबैक सकते पूछ हैं, सकते हैं। राइट? हाँ और तुमने जैसा बोला कि जीडी में तुमने एक दो चीज बताई, वो तुम फिर से बता दो कि मतलब कहाँ पे काम कर सकते हैं जीडी में? हाँ जीडी में कोशिश करना है कि मतलब इंट्रो इंट्रो दे दें, मतलब इनिशिएट कर दें जीडी, या फिर राइट, कंक्लूड कर लें, या फिर ट्राई, मतलब 100% ये तो ट्राई करना है कि फर्स्ट जो 3 पर्सन है ना बोलने वाले, उनमें से तो कोई आप हो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है, क्योंकि इंटर जो रहता है पैनलिस्ट उसको तो वही दिखते हैं जो ज्यादा बोल रहे हैं। राइट, और कोशिश ये करना है कि ज्यादा क्रॉस क्वेश्चंस ना करें दूसरे को जबरदस्ती, मतलब ऐसा नहीं कि हल्ला कर रहे हैं, क्योंकि हमारे में ऐसे थे जिनको हटा दिया गया, उन्होंने शॉर्टलिस्ट नहीं किया जो ज्यादा ही बोल रहे थे। राइट, राइट। तो तो ये वही पॉइंट है, भी वो इंपॉर्टेंट है भी जो तुमने जरूरी बोला होता है। कि बोलना भी है, लेकिन एक लिमिट तक बोलना है, ऐसा नहीं बोल देना कि लिमिट किसी को तक आप है। दबा रहे हैं, किसी को मौका नहीं दे रहे हैं, ये चीज भी नहीं करनी है, राइट? तो यस यस, मतलब ये भी जरूरी इनिशिएट, है। हाँ राइट, किसी को दबाना नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से लास्ट ईयर मेरा भी एल्स्टॉम का शायद जीडी था, तो उसमें भी जो बच्चे उसको दबा रहे थे दूसरों को ना, तो उन्होंने उसको लिया ही नहीं, हाँ राइट? लिया ही तो नहीं, जीडी में कभी ये ये नहीं तो है करना सर। है, किसी को दबाना नहीं है, अपना ओपिनियन रखना है, और तरीका होता है उसका भी रखने का ओपिनियन, ठीक है? सो दैट वाज वेरी गुड ऋतिक। और मेरे हिसाब से अब लास्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज द कंपनसेशन फॉर एनआईटी पटना, एंड स्पेशली फॉर दिस रोल इन एनआईटी पटना? सर सो दे आर ऑफरिंग 11 एलपीए एस सीटीसी। ओके, वो बेस का सर आइडिया अभी तक उन्होंने दे, मतलब ब्रेकअप नहीं दे रखा है, लेकिन वही है, कुल मिला के 11 एलपीए पूरा सीटी। एनएलपी, राइट? सो वो तुम्हें बताएंगे जब तुम ज्वाइन हाँ करोगे, हिसाब से वो चीजें होंगी। और ज्वाइन कुछ भी करेंगे। मेंशन था, और कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें, या फिर उन्होंने बस ऐसे बताया कि 11 सीटी से ये बात नहीं होगी? बस, बस 11 सीटीसी, बस इतना ही बताया गया और कुछ भी नहीं आया है। राइट, ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड सीटीसी व्हेन इट कम्स टू कोर ब्रांचेस, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोर ब्रांचेस का यूजुअली जो सीटीसी होता है वो 7-8 होता है। सो यस सर, इन एवरेज। हाँ एग्जैक्टली। सो ऋतिक, मेरे तरफ से सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, बट फिर भी इफ यू वांट टू ऐड समथिंग एट द एंड, सो आई विल अलाउ यू टू ऐड समथिंग, ओके भी छूट सो रहा हो तो। सर हम, हाँ ठीक है सर। तो सर जैसे मतलब हर कोई जो प्रिपेयर करता है कॉलेजेस में, तो हम भी जान रहे हैं कि सर बीटेक में जैसे रहता है कि सबका सीन खाली ही रहता है, मतलब ज्यादा कुछ ऐसे एकेडमिक्स में करना नहीं होता है। तो कोई भी जैसे जूनियर्स है तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि कोई भी एक स्किल की, एनालिटिक्स है, किसी को एनालिटिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है एनालिटिक्स पकड़ ले, किसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आना है तो वो भी लैंग्वेज सीख सकता है।
या फिर किसी को गेम डेवलपमेंट, मतलब कोई भी एक नीश पकड़ के उस पर फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कुछ कर रहा है, सब में थोड़ा बहुत, फिर दिक्कत आ जाता है। एक ओके। में सेक्टर में अच्छे रहे तो प्लेसमेंट में भी सक्सेस मतलब होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। तो एक चीज और पूछना है ऋतिक, कि जैसे कि ये तुम्हारा कौन सा, तुमने जैसे होता नहीं काइंड ऑफ बच्चे बहुत डिप्रेस होते लास्ट में, ठीक है, तुम्हारे भी कई सारे दोस्त होंगे हाँ जो भी अनप्लेस्ड हुए होंगे, ठीक है, तो तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, और कितनी कंपनी में तुम बैठे और किसी में रिजेक्ट हुए या नहीं हुए, तो ओवरऑल अगर तुम बताना चाहो, इफ यू वांट टू आंसर। यस सर। तो इससे पहले मैं टोटली 4 कंपनीज के एप्टीट्यूड राउंड दे चुका था, जिसमें से पहले में मेरा फोन पे आई थी अपने कंपनी में, जो कि मतलब अपने कैंपस में। और फोन पे का सीटीसी सब कुछ काफी बेस्ट था, मतलब टॉप क्लास था, मतलब सिविल ब्रांचेस के लिए। तो राइट उस राइट पे मेरा फर्स्ट राउंड भी क्लियर नहीं हुआ था। तो उसका 3 कंपनीज थी, उसमें मैं इंटरव्यू के लिए गया था, तो उसमें मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था। और चौथे में मेरा, वैसे तो फीलिंग्स तो काफी खराब भी हो जाती है कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, वही प्लेसमेंट के लिए आप रेडी होके जा रहे हो सच समझ के, मतलब सबका वही रहता है, अपने कॉलेज में भी वही सीन है कि यूनिफॉर्म पहन के जाना होता है प्लेसमेंट के लिए। फिर आ रहे हैं, प्लेसमेंट नहीं होता है, डिप्रेशन तो होती है, लेकिन वही है, एट द एंड जब हो जाता है तब तो काफी अच्छा लगता ही है, अच्छा लगता है, मतलब राइट। एक रिलीफ रहता है। हाँ। तो वो सही है। तो तुम्हारे हिसाब से मान लो दो कैंडिडेट, ठीक है, एक कैंडिडेट ये है जिसका प्लेसमेंट शुरू में ही हो गया, चाहे वो उसकी किस्मत है चाहे वो उसकी मेहनत है, जो भी है। एक कैंडिडेट वो है जिसका प्लेसमेंट लाइक 2-3 महीने बाद हुआ, वो गुजरता गया, रिजेक्शन, कई सारे उसने रिजेक्शन फेस किए और पूरा माहौल डिप्रेसिंग था। तो कौन सा, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि किसकी लर्निंग ज्यादा होगी इन दोनों में से? हाँ, तो जिसका प्लेसमेंट बाद में हुआ है वो हाँ, एक्चुअली मतलब बहुत कुछ सीख जाएगा। जैसे फर्स्ट रिजेक्शन जब होता है, जब पहली कंपनी आती है, जब आप एकदम प्रिपेयर करके रखे हैं, मतलब काफी अच्छी प्रिपरेशन जब हो जाती है, तब ऐसा लगता है कि पहली कंपनी आएगी उस पर बैठ जाएंगे, हो जाएगा। मेरे को भी ऐसा लगता था। राइट। लेकिन जब उस पर नहीं होता है बहुत दुख होता है, लेकिन जब 2-3 कंपनीज में नहीं होता है ना, तब ऐसा हो जाता है अंदर से कि एक फाइटिंग स्पिरिट सा आ जाता है कि आपको कुछ रिजेक्शन पे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, फिर धीरे धीरे अब स्ट्रांग होते जाते हैं। सो वही है, जिसका बाद में प्लेसमेंट होता है, मैं तो बोलूंगा वो ज्यादा ज्यादा सीख रहा है। और प्लेसमेंट हो जाए तो फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको खाली बैठे रहना चाहिए, मैं तो बोलूंगा कि उसके बाद भी कुछ कुछ करते रहना चाहिए और स्किल्स डेवलप कीजिए, क्योंकि अब तो वर्ल्ड मतलब काफी डायनामिक हो गया और हर कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है ही, तो सीखने राइट के लिए राइट तो कुछ भी सीख सकते हैं। या फिर राइट, एग्जैक्टली, इवन आई हैव द सेम ओपिनियन कि वो जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, जब अनप्लेस्ड होते हैं, वो जो माहौल रहता है, वो जो टेंशन होता है ना, वो बहुत कुछ सिखा जाता है, ठीक है। तो यस सर, वो तो है। एग्जैक्टली, सो ऋतिक, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। अगेन वी विल मीट इन द कॉलेज, अगर कन्वोकेशन हुआ किसी बहाने मिल पाएंगे तो बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। या सर। So thank ओके। you so much for coming, and again we will meet. Okay, so till then, bye bye, take care, bye. या ओके, या इट वाज रियली अ नाइस सेशन सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। Okay, okay, no issues, bye bye बाय Ritik. बाय। बाय सर।